Hello friends, I am Chirag Raj. You all are welcome to my video. In this session I am going to show you how can we take attendance while we are delivering lecture or conducting a meeting through online platform, that is Google Meet. There are many platforms available for online meeting, conducting online lectures. Here I will demonstrate you how to take attendance while we are conducting meetings or conducting training sessions or lectures via Google Meet. It is one of the most famous platform available in market nowadays. Especially in these circumstances where teachers or faculties or trainers like us are supposed to not call the students at their place, means college, institute or schools. Students have to sit at their home, and as a faculty or a trainer or a teacher, we are supposed to teach them online through online platforms available in market. Nowadays, as I told, that Google Meet is one of the most famous and popular platform, as it is totally free. So as a teacher, as a faculty, myself and my colleagues in our college are using Google Meet to deliver lectures online. While delivering lectures online, there are different category of peoples who are using Google Meet, that is teachers, trainers, some leader of some corporate group conducting meetings, online meetings. While conducting such sessions or lectures, it is very important to track the users who have joined, or while the meeting was ongoing or the lecture was ongoing, how many students, who are the students who have attended the lecture. It is very important for teacher or a leader to keep the track of the clients who were available throughout the lectures. So as I told you, if we are using Google Meet like our institute, then Google Meet itself does not provide any inbuilt tool or facility to track users or to track who and how many participants were available during the session. And as a teacher or a trainer who is teaching online, most of the time we are presenting our material, our PDF, PPT, or we are demonstrating some code to our students or clients. At that time we are focusing on our screen only. So it may happen that somebody was available throughout the lecture, but at the end of the lecture, when we are taking the attendance, due to some valid reason, or suppose some call arrives, or something else on the client's end, and due to that particular event he is logged out of the meeting, and while we will be watching the list of participants, or we may be taking attendance that participant who was available throughout the lecture, but at the end, due to some circumstances or some event in his mobile, because most of the clients are using mobiles for for joining such meetings. Mostly the students are joining through mobiles only. So in such cases, it is very important to track who was available during the session. So as I told, that Google Meet is not providing any built-in tool, but in market, developers, mostly the teachers who are connected with IT field, or who are the experts or teachers of IT fields, have developed third-party tool which we can use, which we can integrate in our Gmail account as an add-on, through which we can track the attendance of the client. So जैसा कि मैंने कहा आपको कि ऐसा थर्ड पार्टी टूल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं. तो अगर आप लोग चाहते हो स्टूडेंट की अटेंडेंस को ट्रैक करना, अटेंडेंस लेना चाहते हो जस्ट एक सिंगल क्लिक में, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम वो कैसे कर सकते हैं. देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन उनमें से जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है मीट अटेंडेंस.
and as I told you, it is not part of Google Meet. It is a third party tool which we as a client have to install it in our Gmail account through Chrome, and it is also available as a pro version, premium version, for which we have to pay $2.5 per month. So let me show you the Meet attendance tool. For that, see, there is one requirement that you must have Gmail account. You already will have this because you are using Google Meet. If you are using Google Meet, then you will have a Gmail account or G Suite account. Now another thing that is important to be note here is that for using this particular account, you must have for using this tool, you must use your Chrome browser. So as you can see my screen, you have to open the Chrome browser, okay, and remember that you must sign in before doing anything else. Yeah, I am not telling to sign in Gmail, I am telling to sign in Google Chrome. You can see here there is a icon of some people or user at the upper right corner where there is nobody right now, so not signed in, you can see. So once you open this Chrome browser, you have to sign in the Chrome. You can sign using your Gmail account. So I will sign in here using my Gmail account. आपके पास जो अपना जीमेल अकाउंट होगा उसी के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इट इज़ आस्किंग फॉर टर्निंग ऑन दी सिंक्रोनाइजेशन. तो ये सिंक्रोनाइजेशन भी आपको टर्न ऑन करना रहेगा. ओके, यस आई एम. और अगर आप चाहो तो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हो. नाउ सी, एज यू हैव लॉग्ड इन, यहाँ पे आप राइट साइड में अपना यूज़र अकाउंट देख सकते हो. ओके, यहाँ पे भी, और यहाँ ये जो यहाँ पे ऊपर वाला आप देख रहे हो वो है क्रोम का अकाउंट, और ये जीमेल का अकाउंट. यहाँ पे एज ए जीमेल यूज़र आपने लॉगिन किया है, इसलिए ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका जो आपने डिस्प्ले पिक्चर रखा है वो, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो क्रोम का लॉगिन है. अब देखो, ये आपको खास याद रखना है कि जिस अकाउंट को आप यूज़ करने वाले हो गूगल मीट में मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, उसी अकाउंट के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. फिर द फर्स्ट स्टेप है आपका, वो है आपको करना, आप google.com ओपन करो. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, फर्स्ट स्टेप जो है वो ओपन दी क्रोम ब्राउज़र, लॉगिन इन क्रोम ब्राउज़र. देन थर्ड चीज़ जो है, ओपन दी गूगल वेबसाइट, दैट इज़ google.com. यहाँ पे हमने गूगल को ओपन किया. यहाँ फिर आपको लिखना है मीट अटेंडेंस. क्या लिखना है आपको? मीट अटेंडेंस या मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन. ये मीट अटेंडेंस लिखने के बाद आपके सामने इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. यू कैन सी हियर, these are the options. Now you have to select meet attendance from these available options. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप इन meet attendance in search. Okay, select and press enter. Then select the meet attendance from the list shown. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो
मीट अटेंडेंस का जो एक्सटेंशन है, मतलब कि ये एक जो टूल है वो हमारे सामने अभी ओपन होके आ चुका है। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ दिस window you can see that a button is appearing add to Chrome. See, अभी आप यहाँ पे जो अकाउंट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो चिराग राज, जो मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने ये एक्सटेंशन ऐड नहीं करवाया है, इसलिए ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ तक के जो स्टेप्स, वो केवल आपको एक ही बार करने हैं जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करोगे तब। ये अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया है तो ये एक्सटेंशन जो है वो आपको अपने क्रोम में लॉगिन करके ऐड करना है, तब जाके जब आप गूगल मीट को यूज़ करोगे वो अपीयर करेगा आपके मीटिंग में। सो टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन यू हैव टू क्लिक ऐड टू क्रोम। जब आप ये ऐड टू क्रोम करोगे, ये आपके क्रोम अकाउंट में जो जिससे आपने लॉगिन किया है उसमें ये ऐड हो जाएगा। इट मे आस्क यू दैट ऐड दिस मीट अटेंडेंस, यस ऐड एक्सटेंशन। ये बतौर एक्सटेंशन आपको ऐड करना है अपने क्रोम अकाउंट में। इससे क्या होगा कि जब भी आप क्रोम में लॉगिन करोगे तो ये एक्सटेंशन आपके साथ अवेलेबल होगा। अगर आप ही के पीसी में कोई और यूज़र अपने क्रोम अकाउंट में लॉगिन करता है तब ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया, पहले हमने खुद ने लॉगिन किया यहाँ पे क्रोम में, फिर ये एक्सटेंशन को मैंने इंस्टॉल किया है, तो तब जाके ये मेरे अकाउंट में इंस्टॉल हुआ है। मीट अटेंडेंस विल बी visible and by clicking extension. Okay, now you can see the button which was earlier add to Chrome, now it is remove from Chrome। मतलब कि आप रिमूव करना चाहते हो अगर इस अकाउंट को तो रिमूव कर सकते हो। ओके, सो इट वॉज अप टू दिस। जो मैंने स्टेप्स आपको डिस्प्ले किए यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किए वो है इस एक्सटेंशन को ऐड करना, मतलब कि आगे जाके यूज़ करने के लिए पहले एक बार आपको इस एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब वैसे देखा जाए तो कोई स्टेप है ही नहीं। अब आपको मतलब कि यू आर रेडी टू यूज़ दिस टूल और द एक्सटेंशन with your Google meetings. Okay, it is a very handy tool to take attendance while meetings are going on. So this is my Gmail account and I have logged in my Gmail account. Now you can see here there is, if I'm going to conduct a meeting or start a meeting, I will click on start a meeting. For all these things, you know that internet should be available, and it is available. That's why we have reached up to this. Okay, join now. See, when you are joining the Google meeting, at that time, at the time of signing in to the meeting, it will first ask you for selecting an account for which you have installed Meet Attendance. As you know that in this example, I have logged in using my personal account and I have login and I have installed Meet Attendance in that account. So I will select that particular account, and you have to select your account for which you have installed Meet Attendance and using which you will be joining to the meeting. Here, once you have to allow this tool to access the things in your account. Now, as you can see here that I have joined the Google Meet, and here nobody else is available, as I am the organizer of this meeting and this session. And you can see that a new thing for you all is this checkbox and this toolbox.
Earlier, when you were using Google Meet earlier without this extension, this thing was not appearing in your Google Meeting. But now, as I have installed this feature or the extension in my account, and I have joined this account using that Gmail account, and you have to remember that for using this tool you have to use Google Chrome browser in meetings also. Otherwise, for other browsers, if you are using other browsers, this extension will not appear, because this extension is only available for Google Chrome browser. So while installing, you have to log in using your Chrome account, and while conducting the meetings you have to use this Google Chrome browser. Now you can see here that a toolbox is available. I will give you explanation of this toolbox. See, you can see here that this toolbox is what we have just seen in our Chrome account, Google Meet. Now, first of all, this sort of buttons are available. These people shows us how many persons are available or have joined the meeting right now. This checkbox tell us that Google Meet is on, and we are ready to take the attendance of persons who have joined the meeting. Now, below this checkbox you can see the two plus sign buttons are available, and these buttons are for, the first button is for adding a new spreadsheet. See, when we will take attendance using this extension, the attendance or the record of the attendance will be stored in an Excel file, not an Excel file, but in a spreadsheet in our Google Drive. So each time when you conduct a new meeting, you should create a new spreadsheet. If you think that the attendance of each meeting should be in a different spreadsheet, but if you have scheduled several meetings continuously for several days, then it is good for you that to create only one spreadsheet, and for each day there should be one sheet added. So it is up to you that how you want to keep track of the attendance. Either you can create different spreadsheets or only a single spreadsheet and different sheets in that. So if you want to create a new spreadsheet, then you can click here. If you click here, second button, then a new spreadsheet will be created in your Google Drive, and whatever attendance you take through this tool will be stored in that spreadsheet in a new sheet. But if you want to continue with the previous previous spreadsheet, and you want to create a new sheet in which you want to take the attendance, then to add a new sheet you should click here. What will it do? Your spreadsheet will remain the same, but a new sheet, very similar to Excel sheet, a new sheet will be added with name as date on which you are conducting this meeting and the time on which you have clicked on this button. So these two buttons are for adding new sheet and adding new spreadsheet. It is not compulsory to click on these buttons when you are taking attendance or when you are using this particular extension. Now see, the next thing is a toggle button or a radio button. That is, this radio button or toggle button should be can be on or off. If it is off, then taking attendance is off. Means you cannot take attendance if this button is off. By default, this button, this radio button or the toggle button will be on, and it means that you are
your client's attendance is recorded. Okay, when you will click on this button, it will be off, and again if you will click it, it will become on. When you do this activity on off or off on, it will record the attendance of that particular time in the spreadsheet. Next to this is auto scroll on off. It is very important mechanism or the option available here, auto scroll on off. By default it will be on. If it is off, what will happen? As a trainer or as a teacher, you may be aware that when you are teaching or when you are conducting meetings online, sessions online, sometimes there are many students who have joined the session. So it is not every time possible that list of all the students will be accommodated to the list shown on the Google Meet on the right side. सो क्या होता है कि जब आप लेक्चर ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हो और बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो उन सब स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो स्क्रॉल होगा साइड में, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ मोर देन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दी गूगल मीट। तो उससे क्या होगा कि अगर आप देखोगे एक ही स्नैप में, तो आपको उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स देख सकोगे आप, 15 या 12 या 15, लेकिन अगर आपको सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट देखना है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन वो स्क्रॉलिंग का काम करता है, ये जो ऑप्शन है वो स्क्रॉलिंग का काम करता है। अगर ये ऑफ है तो जब अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी तो उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा कि जो एक स्नैप में दिख रहे हैं, स्क्रॉलिंग नहीं होगा। एक पिक्चर में जितने भी अभी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन एज ए टीचर आप तो ये चाहोगे कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है, जॉइंड है, उन सभी का लिस्ट यहाँ पे, मतलब कि उन सभी की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है उसे ऑन रखना है। ऑन रखने से क्या होगा कि जब आप अटेंडेंस को रिकॉर्ड करोगे तो जो लिस्ट है राइट साइड में स्टूडेंट्स का या क्लाइंट्स का, वो ऑटो स्क्रॉल होगा, अपने आप ऑटो स्क्रॉल होगा और उन सभी की अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा स्प्रेडशीट में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल अवेलेबल है जिससे हम एक बेफिक्र होके ये अटेंडेंस ले सकते हैं इसके द्वारा कि भाई सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उन सब का रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो जाएगा आपके स्प्रेडशीट में। अब और एक चीज़ आपको बता दूं कि जब हम अभी ये हमने डाउनलोड किया मीट अटेंडेंस को, तो शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, यहाँ पे हमने जो वर्ज़न डाउनलोड किया है आज के इस सेशन में, वो वर्ज़न बिल्कुल नया वर्ज़न है मीट अटेंडेंस का। इसके पहले और भी वर्ज़न अवेलेबल था उसका, जो मैंने भी यूज़ किया था कुछ दिनों पहले। ये 2 दिन पहले ही अभी रिलीज़ हुआ है, 21 अगस्त को, आज 23 अगस्त है, तो आज से 2 दिन पहले ही ये नया वर्ज़न उन्होंने अपग्रेड करके अपलोड किया है, अपडेट किया है। तो इसके पहले जो वर्ज़न था उसमें क्या था कि ये जो हमने आपको क्रोम का जो मैं बात कर रहा था, ये वाला सी 21, ये हमने जो मीट अटेंडेंस को अभी यूज़ किया है उसकी बात हो रही है। ये देखो 21 अगस्त को इसे अपडेट किया गया। तो हमने जो अभी क्रोम में ये एक्सटेंशन ऐड किया है वो बिल्कुल नया अपग्रेड है उसका। इसके पहले जो पुराना वर्ज़न अवेलेबल था वो मैंने यूज़ किया है और उसमें भी ये सभी सुविधाएं थी, लेकिन एक सुविधा इसमें नई जो अभी ऐड की है उन्होंने, वो है ये स्नैपशॉट अटेंडेंस। ओके, इससे क्या होगा कि इस पर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने ये ऑन रखा हुआ है मीट अटेंडेंस को, तो स्नैप से क्या होगा कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन है उन सबका एक नाम, मतलब कि उनका जो नेम है, अकाउंट का नेम, वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके स्प्रेडशीट में।
ओके, तो जितनी बार आप इस स्नैपशॉट अटेंडेंस पे क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे, उतनी बार अटेंडेंस ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेशन के दौरान केवल एक ही बार आप अटेंडेंस ले सकते हो, आप चाहो उतनी बार अटेंडेंस ले सकते हो एक ही सेशन में। हर बार आपको इस कैमरा का जो पिक्चर है स्नैपशॉट अटेंडेंस, इस पर क्लिक करना है और हर बार क्लिक करने से एक नई कॉलम ऐड हो जाएगी। उस कॉलम का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, करंट टाइम, जिस टाइम पे आपने इस पर क्लिक किया है वो। और जैसा कि बताया मैंने आपको, ऑटो स्क्रॉल तो आपको ऑन ही रखना है, तो भी अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो उन सभी का रिकॉर्ड वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो ये थे सभी ऑप्शंस नई शीट ऐड करने के लिए, नई स्प्रेडशीट ऐड करने के लिए, फिर ये अटेंडेंस ऑन ऑफ के लिए और स्क्रॉलिंग ऑन ऑफ के लिए। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पुराना वर्जन था इसका, उसमें ये मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं था, ये टूल अवेलेबल नहीं था। इसको अभी जो 2 दिन पहले ही नया रिलीज़ हुआ है उस वर्ज़न, उसमें इसको शामिल किया गया है। एक अच्छा टूल अवेलेबल है। और एक बात बता दूं आपको कि ये जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं मीट अटेंडेंस का, ये जो अभी हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, ये फ्री है। उसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, जिसको अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। इट कॉस्ट $2.5 पर मंथ। इसमें अगर आप परचेस करके यूज़ करते हो टूल को, तो सीधी सी बात है आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। तो उन ज़्यादा सुविधाओं की बात करें तो अगर आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। इसमें परचेस करने के बाद आपको सुविधा मिलती है, ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आप इसमें एक टाइम सेट कर सकते हो कि हर 1 मिनट में अटेंडेंस अपने आप रिकॉर्ड होनी चाहिए। अभी जो हमने देखा वो तो क्या हुआ कि हम खुद क्लिक करेंगे इस स्नैपशॉट अटेंडेंस पे, तब अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी। लेकिन आप टाइम सेट कर सकते हो, जैसे कि 45 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। यू कैन सेट द टाइम फॉर specific for each specific interval, and for that each specific duration, automatically the attendance will be noted down in the spreadsheet. So that feature or that facility is available if you are having a paid version of this extension. दूसरी भी एक चीज़ है आपको जो मिलती है अगर आप इसे परचेस करते हो, तो आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप गूगल क्लासरूम्स को यूज़ कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्लासरूम्स आपने क्रिएट किए हैं, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा क्लासरूम, अभी जो आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो वो कौन से क्लासरूम के लिए कर रहे हो। अगर वो आपके पास सुविधा है तो आपको केवल लिस्ट में से सिलेक्ट करना है कि भाई क्लासरूम MCA सेमेस्टर 5। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप अटेंडेंस लोगे तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट ज्वाइंट नहीं है उसका रिकॉर्ड भी आएगा और उसके नाम के बाजू में एब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तो क्या होता है, हमारे पास अनपेड वर्जन है, उसमें फ्री वर्जन है, उसमें जितने अवेलेबल है उन्हीं का लिस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आपको क्लास सिलेक्ट करना है। गूगल क्लास जो आपने बनाया है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उसका, अगर आपके पास पेड वर्जन है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद जब आप अटेंडेंस ट्रैक करोगे, क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनके भी नाम आ जाएंगे, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स आपके गूगल क्लासरूम में एनरोल आपने किए होंगे। तो जो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है उनके नाम भी आ जाएंगे और उनके नाम के बाजू में लिखा होगा एब्सेंट। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसका यूज़ भी देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके। यहाँ पे अभी मैं इनवाइट करता हूँ किसी एक पीपल को। सपोज आई एम इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, दैट इज़ njsmti2012@gmail.com। You can see here the button for meeting has disappeared. In such case you can leave the call and again rejoin for that thing, as you are already having these
Chrome installed. Still it is not appearing. So it will happen many times that you have installed the extension, but while joining the meeting it is not showing you the proper thing. At that time you can again start meeting. Still it continues to not show you the option for taking attendance. You should do one thing, that is open the Chrome and select the go to the Google, then meet attendance. As it is already added, you should check it whether it is available or not. And one more thing you should check, that is synchronization is on or not. No doubt you have logged in the Chrome account, but you have also make this synchronization on. Now you can see that this item was disabled in Chrome. Enable this item. I have clicked on enable this item. So as it was disabled, it was not shown in the Google Meet. Now as I am joining, it will show the attendance tool. You can see here it was disabled. Now as I have invited once more, I have to invite the people as I have left the meeting. Send email. Now let me check that account. This is my another browser which I have opened, that is Firefox, in which I have logged in with that particular account to which I have sent the invitation to join the meeting. And you can see here I have received invitation just now. I will join the meeting from here. Yeah, I have joined the meeting. Okay. So it is the same account as I have been invited. So I will switch account and I will go to the NJS MTI account for which I want to join from the meeting. Join to the meeting, yes. It is not asking for joining, so because it was the previous link. Yeah, now both persons are available, but still the same person is logged in. So again I have to go back, rejoin and join with another account.
lose connectivity. Now you can see here that both different clients have, one client and the owner or the organizer are in the meeting. And going back to the owner or organizers tab, you can see here it is checked that I can check the attendance. First of all, if I am using this first time, I will click on this new spreadsheet. Okay, and then I will uncheck and check this radio button. I will make it off and on, so attendance will be tracked. And अगर हम देखना चाहते हैं उस स्प्रेडशीट को कि जहाँ पे ये अटेंडेंस नोट डाउन की गई है, यहाँ पे ये जो बीच में आप देख रहे हो राइट बटन चेक बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि वो फाइल जिसमें वो स्प्रेडशीट जिसमें ये अटेंडेंस ट्रैक की गई है वो फाइल ओपन हो जाएगी। उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो 23 अगस्त 2020, मतलब कि जिस दिन मतलब ये मीटिंग आपने हेल्ड की है, कंडक्ट की है, उसी दिन के नाम से ये फाइल बनेगी, न्यू स्प्रेडशीट। और नीचे आप टैब भी देख सकते हो। ये शीट 1 जो है वो तो एक एक्स्ट्रा स्प्रेडशीट है, एक्स्ट्रा शीट है। उसमें आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे ट्रैक होगी इस जगह पे, इस स्प्रेडशीट में, जिसका नाम है 23 अगस्त 2020। और यहाँ पे बाजू में जो आप देख रहे हो ये गूगल मीट का कोड है, करंट गूगल मीटिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोड है। अब क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको अगर देखोगे, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो इस फाइल को आप देखोगे तो यहाँ पे अटेंडेंस नोट डाउन की जाएगी। जो भी क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग जो भी अवेलेबल है उनकी यहाँ पे अटेंडेंस ट्रैक की जाएगी। यस, एज यू कैन सी पार्टिसिपेंट्स 2 ऑर्गेनाइजेशन मीन्स माई सेल्फ चिराग राज, और जो क्लाइंट जिसको मैंने इनवाइट किया है वो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि और भी 3 कॉलम्स आ रही है, जॉइंट, लेफ्ट और ड्यूरेशन। जॉइंट मतलब कि कब मीटिंग को ज्वाइन किया उसने, वो टाइम यहाँ पे डेट के साथ मेंशन किया है, नोट किया जाएगा। और लेफ़्ट में आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि लेफ़्ट तो किया नहीं है मीटिंग को, फिर भी यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो लेफ़्ट में ये आपको क्या डिस्प्ले करेगा, करंट टाइम, मतलब कि लास्ट अटेंडेंस जब इस एक्सटेंशन ने, इस टूल ने जब लास्ट में अटेंडेंस को नोट डाउन किया तो वो समय बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ़्ट में आ जाएगा। नो डाउट अभी लेफ़्ट किया ही नहीं है। ये कॉलम जो है आप देख रहे हो लेफ़्ट का, वो अपने आप अपडेट होता रहेगा, अपने आप ये कॉलम अपडेट होता रहेगा। थोड़ी समय के बाद अगर मीटिंग चालू है और जितने भी क्लाइंट्स उसमें लॉग्ड इन है, जॉइंड है, तो उनका टाइम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अपने आप। और ड्यूरेशन में क्या आएगा, लेफ्ट टाइम माइनस जॉइंट टाइम। जो ड्यूरेशन है, जितना टाइम उसने अभी स्पेंड किया है मीटिंग में, वो टाइम यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नया टूल स्नैपशॉट अवेलेबल है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो भी वहाँ पे जिस टाइम पे हमने नोट किया है, स्नैपशॉट को स्नैप पे क्लिक किया है, वो टाइम और डेट नोट किया जाएगा। कॉलम का हेडिंग वही रहेगा और जितने भी क्लाइंट्स है उस समय पे जॉइंट हुए हैं इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अब आप सपोज कि इसको रिफ्रेश करोगे, अभी देखो ये इसमें जो लेफ्ट टाइम है वो 6:51 का है अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। अब टाइम देख सकते हो 6:53 हुआ है अभी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस फाइल को, तो देखो थोड़ी देर के बाद ये जो टाइम है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा और ये ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा। देखा आपने 6:53 हो गया। जैसे ही मैं दूसरे टैब में गया, वापस यहाँ पे आया,
ये अपडेट होकर 6:53 हो गया और दोनों ही क्लाइंट का जो ड्यूरेशन है वो 2:09 दिखा रहा है। अगर सपोज़ कि ये जो क्लाइंट है NJSMTI वो यहाँ से निकल जाता है, एंड करता है, ठीक है, तो 6:53 के ऊपर कुछ सेकंड्स हुई होगी, उसने मीटिंग को एंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वापस अगर हम ट्रैक करेंगे, सपोज़ कि 6:54 को अगर हम अटेंडेंस को यहाँ पे वापस ट्रैक करेंगे, देखेंगे, तो NJ सोनेचा का जो अकाउंट है उसमें क्या हमें दिखाया जाएगा कि उसका जो लेफ़्ट का टाइम है वो नोट डाउन हो जाएगा, आगे ड्यूरेशन उसकी काउंट नहीं होगी क्योंकि वो लेफ़्ट हो गया है। लेकिन जो मेरा अकाउंट है चिराग राज का, उसमें ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मैं अभी भी इस मीटिंग में जॉइंड हूँ, मैं अभी भी इस मीटिंग में कंटिन्यू हूँ। इसलिए सी अभी 6:54 हुआ है और इस फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर, थोड़ी ही देर में ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरा जो रिकॉर्ड है वो उसमें टाइम बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा इसके मुकाबले। Periodically it takes attendance automatically and it updates the records which are already available in this sheet of the spreadsheet. Now you can see here, देखो ये मेरा जो रिकॉर्ड है उसमें 4 minutes and 10 seconds, but this user has logged out of the meeting, okay, has end the call. So यहाँ पे आप देखो तो वो 2 मिनट और 9 सेकंड तक इस मीटिंग में रहा था। नाउ सपोज वो जो क्लाइंट था, वो जो यूज़र था, वो वापस रिजॉइन करता है, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम वापस स्नैप पे क्लिक करते तो क्या होगा। चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्नैप पे क्लिक किया हमने, तो अगर वापस स्प्रेडशीट में देखें हम तो देखो यहाँ पे केवल मेरा अकाउंट है वही यहाँ पे बताया गया है। ये तो क्योंकि दूसरा क्लाइंट जो था वो तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, देखो, ठीक है। इस टाइम पे केवल यही यूज़र, मतलब कि यही ऑर्गेनाइज़र जो है वही अवेलेबल है, ये क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो उसका नहीं आया। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट है, स्टूडेंट है, वो क्या करेगा कि भाई वो एंड कर देगा, वापस रीजॉइन करेगा, जानबूझकर ऐसा करता है, तो वो भी यहाँ पे नोट डाउन हो सकता है कि भाई ये टाइम पे तो वो अवेलेबल नहीं था, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। नाउ सपोज़ कि वो बंदा है वापस ज्वाइन होता है, ठीक है, नाउ ही हैज़ जॉइन द मीटिंग अगेन, तो यही रिकॉर्ड उसका वापस अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे जो 6:53 को वो लेफ़्ट हो गया था उसी को अपडेट करके कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड वापस अलग से कॉलम ऐड नहीं होगी। वो एक अगर हम सोचें कि भाई हमें उसका पूरा ट्रैक रखना है, कितनी बार लॉग्ड इन लॉग्ड आउट किया, तो वो इसमें हमें नहीं जानने को मिलेगा। अगर वो जानना है आपको कि लॉग्ड इन लॉग्ड आउट कितनी बार वो करता है ये एक्टिविटी, तो उसके लिए ये जो मीट अटेंडेंस है उसी तरह का एक दूसरा भी टूल एक्सटेंशन अवेलेबल है मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपको गूगल पे केवल लिखना है गूगल मीट अटेंडेंस, तो आपको ये मिलेगा गूगल मीट अटेंडेंस, जिसमें आप ये ट्रैक रख सकते हो कि कब कितनी बार वो ज्वाइन हुआ, लेफ़्ट हुआ। देखो मार्केट में ऐसे और भी टूल्स अवेलेबल है, ये एक सीधा सिंपल सा टूल है मीट अटेंडेंस, इसलिए ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा। लेकिन और भी टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि एक टीचर है कोई यूएसए में जिन्होंने बनाया है एक गूगल मीट अटेंडेंस का टूल एक्सटेंशन, वो भी काफ़ी बढ़िया है, जिसमें आप क्लाइंट की वो सभी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन उसमें मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले आपको वो उन सभी पॉसिबल क्लाइंट्स का लिस्ट जो है वो उसमें एंटर करना है एक्सटेंशन में, तब जाके वो उन क्लाइंट्स का ट्रैक रखेगा जिनका नाम, जिनका अकाउंट आपने उसमें पहले ऐड करवाया है, लिस्ट ऐड करवाया है उनका। देखो वापस अब देखो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया अपने आप, और उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो भी यहाँ पे शामिल हो गया।
वो और एक चीज़ यहाँ पे हम करेंगे वो है, सपोज़ कि हम ऐड करते हैं एक नई शीट को, ठीक है, एक नई स्प्रेडशीट नहीं, लेकिन उसी स्प्रेडशीट में मैंने एक नई शीट को ऐड किया। देख सकते हो यहाँ पे एक नई शीट ऐड हो गई 6:58 को, जो अभी का टाइम है मेरा जब मैंने क्लिक किया। अब इस स्प्रेडशीट में जितनी भी अटेंडेंस, मतलब कि जो जिन क्लाइंट्स और जो मतलब कि मीटिंग में जितने पीपल्स अवेलेबल है, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे अभी स्टोर होता रहेगा, और अपने आप ये फाइल भी उनके रिकॉर्ड से अपडेट होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि इस तरह से अगर आप शीट को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जॉइंट टाइम जो है वो उसका इस शीट का क्रिएशन टाइम हो गया। मतलब एक्चुअली जो जॉइंट टाइम था उसका वो तो कुछ और था। यहाँ पे हमने देखा कि जॉइंट टाइम जो है वो 6:51 था, और वो उस लेफ़्ट नहीं हुआ है। सपोज़ कि मैं यहाँ पे मेरी बात करूँ तो मैं तो मीटिंग से लेफ़्ट हुआ ही नहीं हूँ, फिर भी ये मेरा जो जॉइंट टाइम है 6:51, वो यहाँ पे हमें बता रहा है 6:59। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि भाई ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये जो शीट बनने के बाद पहली बार जो अटेंडेंस ली गई वो टाइम है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नई शीट ऐड करते हो तो, बट हो सके तो आपको एक ही बार शीट ऐड करनी चाहिए, फिर अटेंडेंस ऑन ऑफ कर सकते हो और स्नैप ले सकते हो। ओके, ये जो मैंने स्नैप लिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप मीट अटेंडेंस के द्वारा थोड़े बेफिक्र होके अपना जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो बार बार इस गूगल मीट की स्क्रीन में देखने के बजाय आप देख सकते हो, अपने कंसंट्रेट कर सकते हो अपने मटेरियल पे, अपने स्क्रीन पे जो आप क्लाइंट को, मतलब कि स्टूडेंट को शेयर कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान उस कोडिंग में, उस स्क्रीन में रहेगा। आपको इस स्क्रीन में बार बार नहीं देखना रहेगा गूगल मीट की स्क्रीन में। तो ये थोड़ा अच्छा मैकेनिज़्म रहता है टूल, कि हम जब चाहे तो इस पर मुड़ के फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। पूरा स्क्रॉल करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार 4 बार अगर आप ये क्लिक कर देते हो तो मेरे ख्याल से इट विल बी सफिशेंट फॉर 40 to 60 मिनट सेशन और लेक्चर। अगर ये 40 to 60 मिनट के सेशन में आप 3-4 बार क्लिक करते हो तो मेजॉरिटी आपके स्टूडेंट्स या आपके क्लाइंट्स की, आपके मेंबर्स की अटेंडेंस वहाँ पे नोट हो जाएगी। सो इट इज़ अ गुड टूल अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज़ गुड टू यूज़ फॉर टीचर्स, trainers or leaders of teams like us. So friends, it was all about using this Meet attendance extension, which is a tool or extension available for Google Chrome, and it is available freely. It is also available at cost, as I told you. You can see here paid version is also available, and you can find the description of this extension below the screen, where we have in the screen below where we have added it to the Chrome. So it was how to use Meet attendance while using Google Meet. सो समराइजिंग ऑल, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब हम गूगल मीट का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि जो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ड्यूरिंग योर एंटायर लेक्चर और एंटायर सेशन आप कंटिन्यूसली हर 15-20 मिनट में इस स्नैपशॉट पे क्लिक करके अटेंडेंस को रिकॉर्ड करो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये आवश्यक नहीं है। आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दिया है, और जब आप अपना गूगल मीट कंडक्ट कर रहे हो, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, और ये ऑन है
ओके। इफ़ गूगल मीट अटेंडेंस इज़ ऑन, आप बेफिक्र होके लेक्चर कंटिन्यू करो। आप बीच बीच में अटेंडेंस को ट्रैक करना नहीं चाहते हो तो जब आप अपना मीटिंग ख़त्म करोगे, व्हेन योर मीटिंग विल बी ओवर, एट द एंड ऑफ द मीटिंग यू कैन चेक, आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग यू कैन चेक योर स्प्रेडशीट और उसमें आप देख सकते हो ज्वाइनिंग टाइम और लेफ्ट टाइम अवेलेबल होगा हर एक उस क्लाइंट का जो आपकी मीटिंग में ज्वाइन हुआ है, चाहे वो भले ही केवल 5 मिनट या 1 मिनट के लिए ज्वाइन हुआ है, लेकिन जो भी क्लाइंट आपकी मीटिंग में ज्वाइन हुआ है उसका ट्रैक वहाँ पे स्प्रेडशीट में जो शीट है वहाँ पे रहेगा ही। तो आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपको ड्यूरिंग योर एंटायर सेशन यू हैव टू टेक अटेंडेंस एट एवरी 10-15 मिनट्स, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइम जैसे कि 10 AM को आपका सेशन शुरू हुआ और 10:45 को ख़त्म हो रहा है, तो 10:20 पर आपको ध्यान रहता है कि ये 10 और 10:20 हुए हैं और आप उस टाइम पे चेक करना चाहते हो कि आगे जाके आपको देखना है कि 10:20 पे कितने लोग प्रेजेंट थे, ज्वाइन थे, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करके मीटिंग में इस स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। तो 10:20 का एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, तो जो आपको बताएगा लास्ट में आप जब देखोगे तो आपको वो बताएगा कि 10:20 पे कितने लोग ज्वाइन थे। अदरवाइज एंड में तो वो आपको बताएगा ही कि भाई स्टार्ट मतलब ज्वाइन टाइम और लेफ्ट टाइम क्या है। लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे पता चले कि इस टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट थे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक करना रहेगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन कॉन्सेंट्रेट टोटली ऑन योर डिस्कशन, योर टॉपिक, योर प्रेजेंटेशन, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल और रिक्वायर्ड देन यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ, वो मैंने आपको कहा कि ये जो आज मैंने आपको बताया कि जो वर्ज़न मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है मीट अटेंडेंस का, वो फ़िलहाल 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ। उसके पहले पुराना वर्ज़न भी था, तो मैं अब तक पुराना वर्ज़न ही यूज़ कर रहा था। और जो मैं पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहा था दोस्तों, उसमें भी एक इसी तरह से फाइल बनती थी मीट अटेंडेंस की। उसमें जो डेटा है वो थोड़ा अलग रहता था, वो मैं आपको बता दूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव ओपन हुई है मेरे अकाउंट की, और इसमें आप ये देख सकते हो मीट अटेंडेंस फाइल। ये सभी आज की ही है, और पुरानी वाली जो है मेरी मीट अटेंडेंस की फाइल जो मैं आपको आज ये 18 तारीख की मैं आपको मीट अटेंडेंस की फ़ाइल बताता हूँ। देखिए, ये वो फाइल है जो इसके पुराने वर्ज़न, मतलब कि इसके पहले का जो वर्ज़न था मीट अटेंडेंस का, उसमें जो फाइल बनती थी वो फाइल है ये, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस फाइल कंटेन्स कॉलम्स। इसमें क्या होता था कि जब मुझे अटेंडेंस लेनी है तब मुझे क्लिक करना रहता था इस ऑन ऑफ पे। ये जो मेरा मीटिंग चल रहा है, कहाँ गया ये, मुझे अगर अटेंडेंस लेनी है तो इसको ऑफ करके ऑन करना रहेगा। पुराने वर्जन में ऐसा था, जब मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ उसी समय पे अटेंडेंस स्टोर की जाती है एक्सेल शीट में। अगर मैं ये नहीं करता, ये ऑफ करके ऑन नहीं करता हूँ पुराने वर्जन में, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होती थी, ऐसा था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि इसको अगर आप ऑन रखते हो तो कंटिन्यूसली वो सिंक्रोनाइज करेगा। आपका अकाउंट तो सिंक्रोनाइज है ही, बट आपकी इस मीटिंग को भी वो सिंक्रोनाइज करेगा, और वो जो स्प्रेडशीट है आपने बनाई है उसमें वो एक थ्रेड उसका आपकी मीटिंग के साथ कंटिन्यूसली रन करेगा, और वो कंटिन्यूसली अपडेट करेगा हर कुछ समय में आपकी उस फाइल को। और जितने भी क्लाइंट्स अभी ज्वाइंड है उन सब का वहाँ पे वो रिकॉर्ड नोट करेगा। मतलब कि जो लेफ्ट टाइम है उसमें वो करंट टाइम, जिस टाइम पे वो एक्टिव है, जिस टाइम पे वो उस अटेंडेंस को ट्रैक कर रहा है, उसको वो नोट डाउन करेगा। तो आपको ये बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पुराने वर्जन में ऐसा था कि यहाँ पे हम जब ऑफ करके ऑन करते थे, जो मैं यूज़ करता था,
20 तारीख तक, उसमें ऐसा था कि ऑफ करके ऑन करोगे तभी अटेंडेंस नोट होगी, और जो अटेंडेंस नोट होगी उसका एक कॉलम बन जाएगा। उसका कॉलम का टाइटल भी क्या होगा, आप फर्स्ट रो उसमें होगी, आप देख सकते हो डेट एंड टाइम, फिर सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स इस तरह से। और अगर मैं भूल जाता हूँ सपोज इस पर क्लिक करना, तो अटेंडेंस का ट्रैक मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा था पुराने वर्जन में, जो इन्होंने सॉर्ट आउट करके इसे एक अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, इस टूल को, इस पूरे एक्सटेंशन को। तो ये था दोस्तों किस तरह से हम मीट अटेंडेंस का यूज़ करके अपनी मीटिंग को ट्रैक कर सकते हैं। अपने मीटिंग में जो लोग शामिल हुए हैं उनका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, और बिना कुछ फिक्र किए, मतलब कि ड्यूरिंग द सेशन वी आर नॉट फोर्स्ड और सपोज टू click any button, but still if we think we can note down the attendance of particular time by clicking that snapshot. Okay, so it was all about the Meet attendance. I hope that I am able to explain you this Meet attendance tool, और मैंने जो प्रयास किया है आपको समझ में आ गया होगा। Still you will be more familiar with it if you start using this tool. तो आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको यूज़ हो सकता है, आपके परिचय में जो लोग हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं, जिनको ये यूज़फुल हो सकता है, उनसे भी शेयर कीजिए। और कुछ ऐसा लगे तो मुझसे भी आप शेयर कर सकते हो इस टूल के बारे में, किसी सिमिलर टूल के बारे में। ओके, सो at last, goodbye everybody. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you.